ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہماری آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے نازل فرمایا۔ اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں اس کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بات بیان فرماتا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ جو کوئی بھی اس دنیا میں ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، باقی کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ ایک دن سے مرنا ہے، فنا ہونا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور فرمایا کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے گا جو تم دنیا میں کر چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے کہ یہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، یا پھر جو ہے اپنی مرضی چلاتا ہے۔ اللہ کے باغی اور اللہ کے احکام سے سرکشی کرنے والوں کے کہنے پر ان کے معاملات پہ یہ چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں لوگ کامیابی کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال اور دولت زیادہ ہے وہ کامیاب ہے، جو عمدہ سواریاں رکھتا ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس عالی شان مکانات اور محل ہیں وہ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل کامیابی یہ نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا قیامت کے دن، وادخل الجنہ، اور جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو اصل میں کامیاب وہ ٹھہرے گا۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے جو ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا میں اگر انسان اس کو کامیابی سمجھتا ہے، مال و دولت کو، اچھے گھر کو، اچھی سواری کو، اچھے کھانے پینے کو، تو فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کا سامان یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، کب ختم ہو جائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہم آپ آج دنیا میں ہیں، کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہم میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس انسان کی کتنی زندگی ہے۔ تو ہمیں اس دنیا میں فکر کرنی چاہیے اس ہمیشہ کی زندگی کی کہ جس سے ہر ایک کا سابقہ پیش آنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کے پیچھے مت بھاگو، یہاں کی نعمتوں کے پیچھے بھاگ کر، یہاں کے عیش و آرام کے پیچھے بھاگ کر آخرت کو فراموش نہ کر دو، اپنے رب کے احکامات کو پس پش نہ ڈال دو، اللہ تعالیٰ کی ہدایات و تعلیمات کے اوپر عمل کرو، اس کے نازل کردہ کلام کو مانو، اس کے بھیجے ہوئے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میرے بھائیوں، اسلام کی تعلیمات میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اقرار کر کے کوئی اللہ کی بندگی کے راستے میں داخل ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قدرت اور اختیار رکھنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی نفع نقصان دینے پر اختیار رکھنے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ وہ اکیلا داتا، دستگیر، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اور اس کے بعد جو وقت کا نبی ہو اس کی رسالت کا اقرار ایمان کا حصہ رہا ہے، چاہے آدم علیہ السلام ہو، دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی، یا پھر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول جو ہمیں بتائے گا، جو طریقہ ہمیں دے گا، جس طرح سے وہ ہمیں زندگی گزارنے کو کہے گا ہم اس طرح سے کریں گے، اس کے بتائے ہوئے طریقے اور سنت کے اوپر چلیں گے۔ تو یہ جو عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے، میرے بھائیوں، اس میں اگر خرابی آ جائے تو اس کے بعد ہمیشہ کی بربادی یقینی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ کے جیسا کوئی اور بھی ہے،
अल्लाह के साथ कोई और भी कुदरत और इख्तियार रखता है, अल्लाह के अलावा कोई और भी हाजत रवा मुश्किल कुशा बिगड़ियां बनाने वाला है, तो मेरे भाइयों ये चीज शिर्क है। अल्लाह के साथ मखलूक को शरीक बनाना है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरे लिए गाली है कि मेरा बंदा मेरा दिया हुआ रिस्क खाए, मेरी हवाओं में सांस ले, मेरा दिया हुआ पानी पिए, और फिर वो उसको मेरा शरीक बनाए कि जिसने उसको कुछ भी नहीं दिया है। मेरे भाइयों, हम सब एक एक सांस के मामले में अल्लाह के मोहताज हैं। जो हम खाते हैं वो अल्लाह देता है, अल्लाह ना दे कोई नहीं दे सकता। जो हम पहनते हैं अल्लाह का दिया हुआ है, किसी और का दिया हुआ नहीं है। तो उसके बाद शुक्रगुजारी भी हमारे ऊपर एक अल्लाह ही की वाजिब होती है। एक अल्लाह के आगे हम सर को झुकाएं, उसको रुकू और सजदा करें, एक अल्लाह के नाम की नजर नियाज करें। अल्लाह ने हमें माल दिया है, अल्लाह के नाम पे खर्च करें, गरीबों जरूरतमंदों की मदद करें, मोहताजों को खिलाएं, ताकि अल्लाह हमसे खुश हो। अल्लाह के नाम की नजर नियाज करनी है, क्योंकि अल्लाह ने हमें दिया है। जुबान से अल्लाह ताला की हम्दो सना और तारीफ बयान करनी है, अल्लाह की बड़ाई हमने बयान करनी है कि अल्लाह ताला तू कितना अजीम है, तेरी कितनी मेहरबानी है हमारे ऊपर, तेरा लाख लाख शुक्र है। हर हर सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तब अल्लाह ताला हमसे राजी होगा कि मेरा ये बंदा मेरा वफादार है, मेरा रिस्क दिया हुआ खाकर मेरा ही शुक्र अदा करता है। अफसोस की बात है कि आज लोगों की एक कसीर तादाद है जो कब्रों पे जाके सजदे करती है, वहां से मांगती है कि ये मिट्टी का ढेर हमें देगा। मेरे भाइयों, कब्र के अंदर कोई दाता दस्तगीर मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं होता है। कब्र के अंदर इंसान गल सड़के मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। ये मेरी नहीं, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। सही बुखारी में आपने फरमाया, कुल्लु इब्न आदम याकुलुहु तुराब, हर इब्न आदम को मट्टी खाकर फना कर देती है। ये हमारी बुजुर्ग खातून कल दुनिया में थी, आज हम में नहीं रही। इस तरह से हमने भी कल दुनिया से चले जाना है। जिस तरह से आज हम इनकी तदफीन के मौके पर इकट्ठा हुए हैं, अल्लाह ताला इनकी मगफिरत फरमाए, इनको जन्नतों में दाखिल फरमाए। इसी तरह से कल इंशाअल्लाह हमारे मरने के ऊपर लोग खड़े हुए होंगे कि ये मट्टी की चीज थी, मट्टी के हवाले कर दी। तो उसके आने से, उस वक्त के आने से पहले हमने अल्लाह की तरफ पलटना है। अल्लाह के अलावा दूसरे को पुकारना, ये मेरे भाइयों शिर्क है। या अल्लाह मदद, या अल्लाह खैर, हमें हर वक्त पुकारना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक अपनी हर जरूरत एक अल्लाह से मांगे। हांडी में नमक चाहिए, खत्म हो गया है, अल्लाह से सवाल करे। जूते का तस्मा टूट गया है, अल्लाह से मांगे। यानी पहले उसकी नजर अल्लाह की तरफ उठनी चाहिए कि अल्लाह ताला देगा, जो चीज मुझे चाहिए अल्लाह ही देगा। आज क्या हाल है कि लोग कब्रों से औलाद मांगते हैं। बाबा शाह जमाल पुत्र दे दे रत्ता लाल। मेरे भाइयों, बाबा शाह जमाल या कोई और किसी को पुत्र या औलाद नहीं दे सकता। अल्लाह ताला सूरह शूरा में फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के पास है। यखलुकु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता है अल्लाह बेटियां देता है। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहता है बेटे देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसे चाहता है बेटे बेटियां दोनों दे देता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे चाहता है सारी जिंदगी बे औलाद रखता है। इन्नहु अलीमुन क़दीर, वो इल्म वाला और कुदरत वाला रब है। तो मेरे भाइयों, ये कब्र के अंदर पड़ा हुआ मुर्दा ये किसी को औलाद नहीं दे सकता। अल्लाह ताला जो आसमानों में है, जो जिंदा है, जो हमेशा सुनने वाला है, रात में पुकारो, दिन में पुकारो, सुबह पुकारो, शाम पुकारो। अल्लाह ना सोता है ना आराम करता है। वो तो कहता है कि मुझे पुकारो, उदूनी अस्तजिब लकुम, सूरह मोमिन में, कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। औलाद चाहिए, अल्लाह से हमें मांगनी है। गुनाहों की मगफिरत अल्लाह से मांगनी है। रोजी में हमने इजाफा हमें दरकार है, अल्लाह से सवाल करना है कि या अल्लाह ताला तू रज़्ज़ाक़ है, मेरे रिस्क में बरकत दे दे। मुर्दों से नहीं मांगना है मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदों से नहीं मांगना है, चाहे वो अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हो, वो भी अल्लाह से मांगते थे।
सूरह जिन आप पढ़ें, अल्लाह ताला फरमाता है कुल इन्नमा अदू रब्बी वला उशरिकु बिही अहदा, कि मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो ऐ नबी कह दो कि मैं भी अपने रब को पुकारता हूं, उसके साथ किसी और को पुकार कर मैं शिरक नहीं करता। अफसोस की बात है आज या रसूल मदद या अली मदद के नारे लगाए जाते हैं। अल्लाह के नेक बंदे मेरे भाइयों, उनके रास्ते पर हमें चलना है, उनको मदद के लिए नहीं पुकारना है, उनकी नजरो नियाज नहीं करनी है, ये शिरक हो जाता है अल्लाह के साथ। और अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, अल्लाह ताला शिरक को कभी भी माफ नहीं करेगा। व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और शिरक के अलावा जो गुनाह है वो जिसके लिए चाहेगा माफ कर देगा। ये ऐसा ही है जैसे कि मेरा बेटा अगर किसी और को कहे कि ये भी मेरा बाप है तो ये मेरे लिए गाली है। इसी तरह अल्लाह का बंदा किसी और को कहे कि ये मेरा दाता है, ये मेरा दस्तगीर मुश्किल कुशा हाजत रवा है, तो अल्लाह के लिए ये गाली है या नहीं है? कि पैदा अल्लाह ने किया, रोजी अल्लाह ने दी, हवाओं में सांस अल्लाह की ली, पानी अल्लाह का पिया, जो कपड़ा पहना वो अल्लाह का दिया हुआ, एक एक जिंदगी के मरहले पर हर चीज अल्लाह की दी हुई, और फिर वो किसी मुर्दे को, किसी इंसान को वो अल्लाह के बराबर करे, तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला इसको माफ नहीं करेगा। इस बात को हमने सबसे पहले समझना है। उसके बाद इंसान पर अल्लाह ने नमाजें फर्ज की हैं, रोजे फर्ज किए हैं, हज फर्ज किया है, ज़कात फर्ज किया है, अगर ईमान शिर्क से पाक हो और फिर अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हो। आप देखें सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। जाबिर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्ससल क़ब्र, कबर को पक्का बनाने से मना किया। वाई युबना अलैह, कबर के ऊपर इमारत बनाने से मना किया। वाई युक़दा अलैह, कबर के ऊपर मुजावर बनकर बैठने से मना किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो कब्रों पर जाने से ही मना कर दिया था, बाद में आपने इजाजत दी और ये कहा कि अब तुम जा सकते हो, क्योंकि कब्रों को देखकर मौत याद आती है, दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है। ये कब्रें मेलों की जगह नहीं है मेरे भाइयों, मौत को याद करने की जगह है कि एक दिन मैंने भी मर जाना है, दुनिया से चले जाना है। आज कब्रें पक्की बनी हुई हैं, उनके ऊपर संगे मरमर लगा हुआ है, वहां मजार आस्थाने बने हुए हैं, वहां मुजावर बैठे हुए हैं, चरस और भंग के कश लग रहे हैं और नारे लग रहे हैं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, ये बिदअत है, ये यहूदियों और ईसाइयों का तरीका है कब्रें पक्की करके वहां पूजा पाठ करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला, उसकी कब्र कच्ची होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई संगे मरमर, कोई सीमेंट, कोई चीज लगी हुई नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ताबीज ना लटकाओ, जिसने ताबीज लटकाया उसने शिर्क किया। मेरे भाइयों, एक ईमान वाले का अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा, वो मुझे हर मुश्किल से निकालेगा, वो हर परेशानी दूर करेगा। ये ताबीज, ये तो मेरे भाइयों मौलवियों का कारोबार है, किसी को 50 का ताबीज देते हैं, किसी को 100 का, किसी को 500 का, किसी को 1000 का, किसी को इससे भी ज्यादा। अल्लाह की किताब को कारोबार का जरिया बनाया हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना फरमाया कि जिसने ताबीज लटकाया उसने शिर्क किया। आज अफसोस की बात है कि हम कलमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हैं और उनकी तालीमात पे लोग अमल करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हम अमल करेंगे तो हम उनके मानने वाले कहलाएंगे। क़यामत के दिन वो हमारे लिए शिफात करेंगे अल्लाह से और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें बख्श देगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ शिर्क करता था तो क़यामत के दिन मैं उसकी शिफात नहीं करूंगा, चाहे कोई भी हो। अल्लाह ताला के यहाँ कानून सबके लिए बराबर है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया, वो कौम के साथ जहन्नम में गया, नबी का बेटा था, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक रिश्तेदारी, ताल्लुक, कौम, कबीले, जुबान, इसकी कोई अहमियत नहीं है। उसके नजदीक अहमियत इस बात की है कि कौन बंदा अल्लाह का वफादार है, कौन सच्चा गुलाम है। अल्लाह ताला उसको पसंद करता है। देखें, बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु थे, अल्लाह ताला के कितने नेक और पसंदीदा बंदे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की चाप सुनी है। हबश के रहने वाले थे, रंग काला था, खूबसूरत नहीं थे दुनियावी लिहाज से जैसे खूबसूरत समझा जाता है,
لیکن اللہ کے بندگی میں مخلص تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں آپ کو سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، پیروں مولویوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہیں چلیں گے۔ یہ فرقے اور مسلک جو بنے ہوئے ہیں، کوئی دیوبندی کہلاتا ہے، کوئی اہل حدیث کہلاتا ہے، کوئی بریلوی کہلاتا ہے، یہ دین میں نہیں ہے۔ یہ پیروں اور مولویوں نے اپنی اپنی مذہبی دکانیں بنا رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صرف مسلمان تھے، ہمیں بھی یہی اپنے آپ کو کہنا ہے، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہر معاملے میں پیروی کرنی ہے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور اسی کے اوپر جو جائے گا وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ یہ بزرگ خاتون، ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، یہ اسی ایمان پر گئی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے گا، ان کو جنتوں میں جگہ دے گا۔ ان کے لواحقین کو، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے، اجر دے، ان کو بے انتہا بلند درجات دے جنت کے اندر۔ ہماری یہ سب کے لیے دعا ہے، آمین۔ اور یہ کہ یہ جو تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں عام طور پہ رائج ہیں، یہ دین میں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ